Hello ITJE aspirants, कैसे हैं आप लोग? I welcome you to the platform of Infinity Vision. This is a course on quadratic equation and this is lecture number 3. Today we are going to cover three things. First, we are going to talk about quadratic identity. Second, we are going to talk about the condition for common root between two quadratic equations. And in third, we are going to talk about how to plot the graph of quadratic function. In part 1, quadratic identity, we'll be first seeing what do we understand by quadratic identity, when does a quadratic equation becomes a quadratic identity. Then we'll try to understand what should be the conditions when we can say that a particular quadratic equation has become a quadratic identity. After that, we'll be doing some fantastic problems to enhance the understanding for the concept, and then which will also enhance our problem solving skills for IIT JEE Mains and Advanced. In the second portion, we'll be talking about what do we understand when we say a common root among two quadratic equations and two common roots among two quadratic equations. What should be the conditions when we can say that okay, these two quadratic equations have a common root or both the roots of these two quadratic equations are same. We'll be seeing both the cases and we'll be deriving the condition for that, and then we'll be doing again to enhance the understanding. We'll be doing a lot of problem solving. Some those problem solving are very fantastic and that will help you enhance the problem solving skills needed for IIT JEE Mains and Advanced. And in the third part, we'll be just seeing the analysis of the graph of y is equal to x square. How did we draw the graph of y is equal to x square, if you remember in basic math classes? Then we'll learn how to draw the graph of y is equal to ax square, and from gradually we'll go to y is equal to ax square plus bx plus c, and to understand, and we'll summarize the whole evaluation in just an algorithm, that how to draw a graph of y is equal to x square plus bx plus c in just mere 4 to 5 steps. So without wasting much time, let's get started. So as you know, this is lecture number 3. So first, let's see what we have already covered in this course. As you know, in section A, we have already covered the introduction of quadratic equation. Then we did the completing the square method. Then we talked about the discriminant of quadratic equation. Then we derived some product and difference of roots of quadratic equation. After that, we learned how to represent quadratic equation using its roots by factor theorem. Then also we learned how to represent quadratic equation by using sum and products of the roots. Then we did a lot of problem solving to strengthen those concepts which we learned. And then we understood the nature of roots. We learned all the things about the nature of roots, and to strengthen the concepts, we did problem solving again. And then we did quadratic inequality and then roots under particular conditions. We did a lot of conditions, if you remember the last class. And to enhance that, we did a lot of problem solving as well. As you know, today we are going to cover quadratic identity and problem solving. The second part, we are going to do common roots of two quadratic equations and then the problem solving. And the last part of today's lecture is going to be the graph of quadratic function. After that, in the next class, we will be touching range of quadratic function and then we'll go beyond, right? So let's get started. The question is, what do we understand by quadratic identity? आपको already पता है कि quadratic equation की जो नेचर ऑफ रूट्स होती है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो 2 रियल रूट्स होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं, और जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो उसके दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं. तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैक्सिमम 2 रियल वैल्यूज ही सेटिस्फाई कर सकती है, और वो जो 2 रियल वैल्यूज होती है उसे हम कहते हैं रूट्स. जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से ज्यादा रियल वैल्यू सेटिस्फाई करने लगे, मान लीजिए अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अल्फा बीटा के अलावा एक और रियल वैल्यू है गामा, लेट से, वो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 डिग्री पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस 2 ही हो सकते हैं, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. तो जब ये कहानी हो जाएगी सच, तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, हम उसे क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी कहेंगे. तो जैसा कि मैं कह रहा हूं आपको लिख के, जैसे मैं देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है. ये आपको एक सीधा साधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है. हमें ये अचानक से क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी कब बन जाएगा? जब इसको 3 रियल वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे. कौन से 3 रियल वैल्यूज?
एक तो अल्फा जो इसके रूट्स अल्फा बीटा जो आपको नॉर्मली जानते हैं जिसकी 2 रियल रूट्स होते हैं, उसके अलावा भी अगर आपको गामा भी इसको सेटिस्फाई करने लगे तो आप इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, आप इसे क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी कहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 रियल रूट्स 3 रियल वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 1 कह लो आप इसे। दूसरा हो जाएगा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। और फिर उसके बाद a गामा स्क्वायर प्लस b गामा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। चलिए पहले इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखिए a कॉमन आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, b कॉमन आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, c से c कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद 0। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस b इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये आपको ध्यान में रखना है कि 3 डिस्टिंक्ट रूट्स वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड गामा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू अल्फा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। तो यहाँ से कॉमन मैं क्या ले सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा मैंने कॉमन ले लिया इंटू ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी। जैसा कि आप जानते हैं अल्फा और बीटा अनइक्वल है, तो अल्फा माइनस बीटा 0 नहीं होगा, तो 0 क्या होगा, a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर देता हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। तो आप जानते हो सिमेट्री से आप कह सकते हो a इंटू अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा वुड बी इक्वल टू 0। इसे आप कह दो इक्वेशन 4 और इसे आप कह दो इक्वेशन 5। अब मैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, आपके पास क्या आया, आपके पास आया a कॉमन ले लो, बीटा माइनस गामा अल्फा से अल्फा कैंसिल इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि बीटा और गामा दे आर नॉट इक्वल, सो बीटा माइनस गामा 0 नहीं हो सकता, तो आपके पास कंडीशन आया a इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को 3 वैल्यूज सेटिस्फाई करेगी, तो उसमें सबसे पहला कंडीशन आपका होना चाहिए जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है a वो 0 होगा। विद द सेम कॉन्सेप्ट b भी 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इसे 2 से ज्यादा रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इससे 2 से ज्यादा रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। और ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी तभी होगी जब a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 होगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि फॉर quadratic equation to become a quadratic identity, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और जो कांस्टेंट है वो तीनों 0 के बराबर होंगे। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। एक चीज आप नोट करके रखिए कि अगर कोई इक्वेशन है डिग्री n का, अगर कोई इक्वेशन है डिग्री n का और उसको n से ज्यादा रियल वैल्यूज अगर सेटिस्फाई कर रही है, तो फिर से वो जो पॉलिनोमियल होगा n डिग्री का, वो आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल आइडेंटिटी हो जाएगा। तो फिर से मैं कह रहा हूं, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, उसको n से ज्यादा वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहे हैं, n से ज्यादा जीरोस हैं उसके, n प्लस 1 n प्लस 2 रियल वैल्यूज हैं जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो पॉलिनोमियल आइडेंटिटी कहलाएगा। और वो पॉलिनोमियल आइडेंटिटी कहलाएगा वो कंडीशन कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 up till coefficient of x and constant will all become 0, then only that would be satisfied। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी दिखे, मतलब या कोई भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक का दिखे जिसमें 2 से ज्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको झट से बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट तीनों 0 है। इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 21 क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ इक्वेशन p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 का
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दे रखा है, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2। और कांस्टेंट क्या दे रखा है, पी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, हैज मोर देन 2 रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आप जैसा कि देख रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको 2 से ज्यादा रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। और कोई भी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी कब होती है, जब आपको अगर कोई मैं कहूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है, या तो मैं इसे क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी सीधा बोलूंगा या मैं बोलूंगा मोर देन 2 रूट्स इसको सेटिस्फाई कर रही, तो आप झट से क्या बोलोगे, आप बोलोगे a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। तो ये कहानी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी तब बनेगी जब p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 एंड p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड p स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको ये ध्यान में रखना है कि तीनों चीजें 0 होनी चाहिए, तीनों चीजें 0 होनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कंडीशन है, आप इसको सेटिस्फाई, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा p माइनस 2 इंटू p माइनस 3। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा, जिसकी वजह से आप p की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 एंड 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा p माइनस 2 इंटू p माइनस 1 इक्वल 0, जिससे p की वैल्यू क्या आएगी, p इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 1। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये फैक्टराइज होकर क्या बनेगा, p प्लस 2 इंटू p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो p क्या हो गया, 2 और माइनस 2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन होना चाहिए। आप देख सकते हो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, 2 2 2 कॉमन है, तो p की वैल्यू 2 होनी चाहिए। सो द आंसर इज गोइंग टू p हैज टू बी इक्वल टू 2। आई एम श्योर आपको ये सवाल समझ में आ गया है, राइट? आइए एक और सवाल देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। If p plus 2 into p minus 1 x square plus p minus 1 into 2p plus 1 x plus p square minus 1 equals 0 has more than 2 roots, then find the value of p. Again, I don't have to explain this question, right? आपको पता चल चुका है, आपको इसको 0 बनाना होगा, एंड के साथ इसको 0 बनाना पड़ेगा और एंड के साथ इसको 0 बनाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद तीनों का जो कॉमन आंसर आएगा, तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा, दैट वुड बी द आंसर वैल्यू ऑफ p व्हिच विल सेटिस्फाई। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, यू जस्ट ट्राई ऑन योर ओन। 23rd बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, गौर से देखिए क्या सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा देखने में देख रहा है। देखिए जैसे क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है और आपको दे रखा है कि a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c एंड c इज नॉट इक्वल टू a। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आपको साफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, नीचे कॉन्स्टेंट्स दिख रहे होंगे। डेफिनेटली c a b तीनों अनइक्वल हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस 0 नहीं आएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 ऐसे भी नहीं होगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस कॉम्प्लेक्स पूरे कहानी को सॉल्व करने के लिए जा सकते हैं और उसमें उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप सिमेट्री से गौर से देखोगे, आप गौर से इस पूरे एक्सप्रेशन की सिमेट्री देखो कि x के साथ a b आ रहा है, फिर b c आ रहा है, फिर c a आ रहा है, और नीचे देखो c माइनस a, c माइनस b है, फिर a माइनस b है, a माइनस c है। तो आप ना एक बार x इज इक्वल टू a डालो, इस पूरे एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू a डालो। लेट्स चेक, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि a b c तीनों के लिए सिमेट्रिक कहानी है। आप देख रहे हो तीनों अनइक्वल नंबर्स है और तीनों के लिए सिमेट्रिक कहानी है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू a डालता हूं तो एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो पहला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a माइनस ए 0, तो पहला एक्सप्रेशन तो 0 हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, x के बदले मैंने डाल दिया a माइनस बी इंटू a माइनस सी अपॉन a माइनस बी इंटू a माइनस सी। तीसरा एक्सप्रेशन देखो क्या है, x के बदले डाला a माइनस सी और दूसरा a माइनस ए फिर से 0 बन गया। तो देखो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू a पे, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या होता है 1। तो x इज इक्वल टू a डालने पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। x इज इक्वल टू a डालने पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 1।
आइए फिर देखते हैं x इज इक्वल टू बी डालने से क्या होगा। x इज इक्वल टू बी डालोगे फिर से पहला एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, क्यों? देखिए क्योंकि x माइनस बी है, b माइनस बी जीरो हो जाएगा। दूसरा एक्सप्रेशन भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे x को b डालेंगे तो b माइनस बी जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो। तीसरा एक्सप्रेशन देखो क्या हो जाएगा, b माइनस सी इंटू बी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए। देखिए फिर क्या बन गया, ये भी वन बन गया। तो x इज इक्वल टू बी डालने पे फिर से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। उसी तरीके से x इज इक्वल टू सी डाल दीजिए। x इज इक्वल टू सी डाला, फिर क्या हुआ, x इज इक्वल टू सी डालने से पहला एक्सप्रेशन देखिए क्या हो रहा है, c माइनस ए इंटू सी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस दूसरा क्या हो जाएगा जीरो, तीसरा क्या हो जाएगा जीरो, फाइनली क्या बन जाएगा वन। तो आप अगर देख सको तो आप इस पे गौर से देखने वाली बात जो है वो मैं बता रहा हूं, वो ये कि इस एक्सप्रेशन को मैं इक्वल टू वन कर देता हूं तो इस इक्वेशन, बताइए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो गए, ए बी सी, तीन डिफरेंट रूट्स हो गए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन डिफरेंट रूट्स कब होते हैं, जब वो आइडेंटिटी बन जाता है। तो आई एम श्योर अब आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली से द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनीमोर, दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। और इस पूरे आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। तो आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी वन। उसके अलावा दूसरी क्या कर सकते हो, उसके अलावा जो आप लॉन्ग मेथड यूज कर सकते हो कि आप फिर से इसमें क्या कर सकते हो, पूरा एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेके फिर वही कचरा कबाड़ा करना होगा, फिर आपको एक्स स्क्वायर कोफिश, और फिर आप देखोगे कि बाय सिमेट्री आई कैन से दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बीइंग सॉल्व्ड बाय थ्री डिफरेंट वैल्यूज, दैट इज ए बी सी। तो आप कहोगे कि दिस एक्सप्रेशन इज एन आइडेंटिटी और फिर आप उसकी वैल्यूज पुट करके निकाल दोगे। आप समझ रहे हो? तो एक तरीका है इसको स्मार्टली सॉल्व करने का, एक तरीका है पूरा लंबा तरीके से सॉल्व करने का। तो आई एम श्योर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब आपके हाथ में है। तो आपने देखा कि सिमेट्री है, तीन वैल्यूज के लिए सिमेट्रिकल है, तो तीन वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन वन आ रहा है। तो बेसिकली अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचा बना, क्योंकि तीन डिफरेंट वैल्यूज ए बी सी पे ये वो पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये आइडेंटिटी है और आप इसको इक्वल टू वन कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, इफ 4a स्क्वायर इंटू एफ टू द पावर माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन, इसको फंक्शन कहते हैं, फंक्शन एट माइनस वन, प्लस 4a इंटू एफ वन प्लस एफ टू इक्वल 3a स्क्वायर प्लस 3a, 4b स्क्वायर इंटू एफ ऑफ माइनस वन प्लस 4b इंटू एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू 3b स्क्वायर प्लस 3b, 4c स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन प्लस 4c एफ वन प्लस एफ टू इक्वल्स 3c स्क्वायर प्लस 3c, and A, B and C are distinct. All the three numbers are distinct and fx is a quadratic polynomial. You have to find f0. अब इस पे मत परेशान होइए कि fx क्या है। यहां पे अगर मैं गौर से देखूं तो मैं इस एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहता हूं। क्या इक्वेशन लिखना चाहता हूं, 4x स्क्वायर f ऑफ माइनस वन प्लस 4x f1 प्लस f2 इक्वल्स 3x स्क्वायर प्लस 3x। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब आप सोच रहे हो मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखा, मैंने a को रिप्लेस कर दिया x से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप जैसा कि देख सकते हो, इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय a, इट्स बीइंग सेटिस्फाइड बाय b, इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय c। तो आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक जो मेरा बना है, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन बना है, इस दरअसल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। तो मैं इस क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी जो मैंने लिखा है इसको फिर से मैं लिख देता हूं, 4x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ माइनस वन प्लस 4x एफ ऑफ वन प्लस f2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब मुझे क्लियर हो गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स, व्हिच मींस दिस इज अ क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखूं तो क्या है, 4 ऑफ f माइनस वन माइनस 3 x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 3, सॉरी 4 ऑफ f1 माइनस 3x प्लस f2 इक्वल 0 है। और इसको सेटिस्फाई कितनी वैल्यूज कर रही है? 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ए बी सी, विच मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी, जिसका मतलब क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट, ऑल द थ्री हैज टू बी इक्वल टू 0। तो इसका मैं ये लिख सकता हूं कि 4 ऑफ f माइनस 1 माइनस 3 इक्वल 0, 4 ऑफ f1 माइनस 3 इक्वल 0 एंड f2 इक्वल्स 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक, और मेरा fx क्या है? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जैसा कि देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, fx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं इसको लिख लेता हूं px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए f0, मतलब मुझे r की वैल्यू निकालनी होगी। आप जैसा कि देख सकते हो यहां से मैं कह सकता हूं f ऑफ माइनस 1 इज 3/4 और f ऑफ 1 इज 3/4। f ऑफ 1 और f ऑफ माइनस 1 दोनों क्या आ रहा है? 3/4 आ रहा है, राइट। और तो आप अगर मैं इसको लिखूं f ऑफ 1, तो दैट इज f ऑफ 1 इज 3/4, तो ये क्या बन गया? p प्लस क्यू प्लस r, और फिर से मैं लिखूं f ऑफ माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3/4 p माइनस क्यू प्लस r, और f ऑफ 2 क्या दे रखा है? f ऑफ 2 0 है, तो यहां पे 0 डाल दो तो क्या हो जाएगा? 4p प्लस 2q प्लस r। तो मुझे f ऑफ 0 निकालना है, f ऑफ 0 बेसिकली क्या होगा? r, तो मुझे r की वैल्यू निकालनी है। 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स, आपको एक की वैल्यू निकालनी है, बड़े आराम से आप निकाल देंगे। अगर आप गौर से देखें तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 1, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 2, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 3। अब देखिए डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं, रेड। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देखिए क्या हो जाएगा? 3/4 0 हो जाएगा, p से p 0, r से r 0, तो 2q क्या हो गया? 0, तो q क्या हो गया? q की वैल्यू हो गई 0, q की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो अब मैं कह सकता हूं p प्लस r इज 3/4 एंड 4p प्लस r इज 0। अब क्या कर सकते हैं? इसको मैं कह सकता हूं 4p प्लस 4r इज इक्वल टू 3, और इसे कह सकता हूं 4p प्लस r इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसे कह लो इक्वेशन 4 और इसे कह लो इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 कर लो, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 से क्या हो जाएगा? 4r माइनस r 3r इज इक्वल टू 3, सो r इज इक्वल टू 1। सो r की वैल्यू क्या आ गई? 1, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी, यहां से फिर आप p की वैल्यू भी निकाल सकते हो और आप ये क्वाड्रेटिक fx भी निकाल सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगता आपको, क्या कहते हैं, अगर आप डिफरेंट तरीके से गलत रास्ते चले जाते, लेकिन इसको समझने के लिए आपको क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था समझना। आई एम श्योर अब आपको स्ट्रेंथनिंग हो गई है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी पे। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम करेंगे कंडीशन फॉर 2 कॉमन रूट्स, जस्ट 2 मिनट के ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं द सेकेंड पोर्शन, द कॉमन रूट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दिया है और आपको बताया जा रहा है कि इन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 रूट कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। जैसा कि आपको पता है a1 a2 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b1 b2 कोफिशिएंट ऑफ x है और c1 c2 कांस्टेंट है। ये 2 डिस्टिंक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखा है और कहा जा रहा है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। तो मतलब ये हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 में, अगर लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 जो a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 है, उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2, उसके रूट्स होंगे अल्फा एंड गामा। तो ये हम कह सकते हैं कि अल्फा इज अ कॉमन रूट, इसका मतलब ये होता है। अब ये कंडीशन क्या होता है, कैसे पता चलेगा, ये देखते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x स्क्वायर
प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल 0। राइट, आपके पास ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गए। आपको पता है कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा, और जो इक्वेशन 2 है उसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड गामा। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा जो है दोनों में कॉमन है, तो वी कैन से ओनली वन कॉमन रूट। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, तो इक्वेशन 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? इक्वेशन को मैं 1 को लिख सकता हूं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और लिख सकता हूं a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स 0। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्लास 10 की एक बात याद दिला देता हूं। आपको याद होगा आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और आपने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो क्रेमर लॉ भी कहते हैं, जिसे आपने सॉल्व किया था x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स y अपॉन y को आप छुपा लोगे तो आप लिखोगे c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स 1 अपॉन कांस्टेंट छुपा लोगे आप लिखोगे a1b2 माइनस a2b1, अगर आपको याद हो। राइट, हमने क्लास 10 में ये किया था। तो सेम कॉन्सेप्ट से सेम चीजों को लगाते हुए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन, इसको छुपा लो तो क्या बचेगा b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू, फिर अल्फा अपॉन, इसको छुपा लो तो क्या बचेगा c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको छुपा लो तो क्या बचेगा a1b2 माइनस a2b1। तो हम इन दोनों को इक्वेशन से क्या समझ में आया? हमें समझ में आया अल्फा स्क्वायर अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स अल्फा अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आया है, इससे मैं दो, अगर मैं इसको ध्यान दूं, इस इक्वेशन पे ध्यान दूं, तो इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। और अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन c1a2 माइनस c2a1। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो मेरे पास आता है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 इक्वल्स b1c2 माइनस b2c1 upon c1a2 minus c2a1. This is the condition which we are going to say that if this condition exists, we can say two quadratic equation has a common root. If this condition does not exist, we do not say that they have a common root. तो आपको जब भी आपको कॉमन रूट की क्वेश्चन आए, हमेशा इस इक्वेशन क्रेमर लॉ पे आ जाइए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब कंडीशन कभी कभी ये होती है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं और वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट सेम है, जैसे कि एक फिर से मैं देख सकता हूं a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल 0। अब मान लीजिए इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा और इसके भी रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हो? इक्वेशन 1 के कॉन्सेप्ट से आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b1 by a1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज c1 by a1। इक्वेशन 2 के कॉन्सेप्ट से आप क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b2 by a2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज c2 by a2। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि माइनस b1 by a1 इज इक्वल टू माइनस b2 by a2। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चला कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। सेम वे इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको पता चला c1 by a1 इज इक्वल टू c2 by a2। इससे क्या पता चला? इससे पता चला a1 by a2 इज इक्वल टू c1 by c2। और इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या पता चला? इन दोनों इक्वेशन से आपको पता चला कि a1 by a2 इक्वल्स b1 by b2 इक्वल्स c1 by c2। ये कंडीशन कब वैलिड है? व्हेन बोथ रूट्स आर सेम, बोथ
रूट्स आर सेम, राइट। तो आपको अब ये भी सवाल समझ में आ गया है कि जब कहा जाता है टू रूट्स कॉमन तो उसका क्या मतलब है और वन रूट कॉमन। तो आइए इसको एनहांस करते हैं थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए पहला सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस p इक्वल 0 एंड 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। सो लेट्स से द कॉमन रूट इज अल्फा। तो हम क्या कह सकते हैं, कॉमन रूट अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स से इसका और इसका जो कॉमन रूट है वो अल्फा है। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस p इक्वल 0 एंड 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 17 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो डिफरेंट इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं जिसमें अल्फा सेटिस्फाई करेगा। आपको p की वैल्यू निकालनी है तो आप फिर से क्रेमर्स लॉ लगा दीजिए, अल्फा स्क्वायर अपॉन, अब देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ अल्फा यहाँ पे क्या है -2 और यहाँ पे क्या है 12, -2 इंटू 12 क्या होता है -24, माइनस कर दीजिए। आपको याद होगा B1C2 माइनस B2C1, तो B2 क्या है -17 और C1 क्या है P, तो -17P इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा के साथ क्या हो जाता है C1A2 माइनस C2A1, सो C1 क्या है P इंटू A2 दैट इज 6P माइनस 12 इंटू 33 दैट इज 36 अपॉन 1 अपॉन कांस्टेंट आ जाता है तो आप फिर से लगा सकते हो 3 इंटू माइनस 17 इज माइनस 51 माइनस A1B2 इंटू A2B1, A2 क्या है 6 इंटू -2 इज -12। ओके, अब आप देख सकते हो, आप दोनों एक इक्वेशन से लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 17p माइनस 24 बाई 6 इंटू p माइनस 6, और इससे आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 6 इंटू p माइनस 6 अपॉन -39। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, इन दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो 6p माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -39 इंटू 17p माइनस 24, क्रॉस कर दिया आपने, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 36 इंटू पी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12p, और उधर क्या रह गया, उधर रह गया -39 इंटू 17p माइनस 24। देखिए कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है लेकिन आप दिमाग लगाएंगे तो उतना कैलकुलेशन नहीं है। 3 से काट दीजिए, ये बन जाएगा 12p स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12p, और ये बन गया -13 इंटू 17p माइनस 24। इसको खोल दीजिए, ये बन जाएगा 12p स्क्वायर माइनस 144p, 36 इंटू 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 इंटू 3 इज 432, ये हो जाएगा -13 इंटू 17 10 जा 170 और उसमें 3 कर दो तो 51, तो क्या बन जाता है -221p, और -13 इंटू 24 जैसा कि आप जानते हो 13 2 जा 26 और 260 प्लस 52 312, तो ये बन जाएगा 312। अब देखिए सबको इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा 12p स्क्वायर प्लस 221p माइनस 144p प्लस 432 माइनस 312 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर देंगे और p की वैल्यू निकाल देंगे। 221p क्या हो जाएगा 5677p, और ये बन जाएगा 220। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा एंड देन यू कैन फाइंड योर वैल्यू ऑफ p। आपसे अगर अल्फा भी पूछा जाएगा तो आप अल्फा भी आप बता सकते हैं। Let's solve question number 26. Find p and q such that px square plus 5x plus 2 equals 0 and 3x square plus 10x plus q is equal to 0 have both roots in common. So what you see is both roots here. Both roots in common means if it has alpha beta, then it has also alpha and beta. And what the condition for both roots common? It's if the quadratic equation says a1x square plus b1x plus c1 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0, then the condition for both roots common is a1 upon a2 equals b1 upon b2 equals c1 upon c2. So this question becomes a very easy direct question. So it will be p by 3 equals 5 by 10 equals 2 by q. So using this you can find p and q. So I would rate this question as level 1, very direct question.
Okay. Question number 27. If you look, if ax square minus ax plus b equals 0 and x square minus px plus q have a root in common and the second equation has equal roots. So let's say the common is alpha and the second equation has equal roots, means both the roots is alpha alpha. So what you can say that the discriminant of second equation is going to be equal to 0, which means you can say p square equals 4q. The other thing you can say the sum of roots, that is alpha plus alpha, that is 2 alpha, is going to be equal to minus of coefficient of x, that is p. So you can say alpha is going to be p by 2. कैसे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, if you remember this from the quadratic equation result. तो अगर मैं इसमें कहूँ दो रूट्स अल्फा प्लस अल्फा है तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस बी, माइनस ऑफ कोफिशिएंट p is कोफिशिएंट of x is minus p, so minus minus plus p by 1. So you can say 2 alpha is equal to p, so alpha equals to p by 2. So these are two very important results which you need to understand from equal roots. Now we have to prove that twice of b plus q equals a into p. तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल एल्गोरिथम से जाते हैं कि लेट से अल्फा कॉमन है, तो व्हाट आई कैन से अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल 0 एंड अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल 0. जैसा कि आप जानते हैं क्रॉस कर सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर वुड बी इक्वल टू माइनस ए क्यू प्लस बी पी, राइट, equals alpha equals to b minus q, which is equal to 1 upon minus p minus that will be a minus p. So from here what I can derive that alpha is equal to b minus q upon a minus p, which is also equivalent to minus aq plus bp upon b minus q. And from here what I see is alpha is p by 2. So what I can do is alpha equals p by 2. तो ये मेरे पास दो इक्वेशन निकल के आ गया है. अब मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ b प्लस क्यू इक्वल्स a इंटू पी. तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंस आई नीड टू हैव ए पी ऑन अ राइट हैंड साइड, सो मैं इसको और इसको यूज कर सकता हूं. तो मेरे पास क्या बचेगा? b माइनस क्यू अपॉन a माइनस p इज इक्वल टू p बाई 2. ये हो गया. अब मैं क्रॉस कर देता हूं, 2b माइनस 2q इज इक्वल टू ap माइनस p स्क्वायर. नाउ दिस इज द थिंग वी हैव गॉट. नाउ अभी हमने देखा था क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी से हमें पता क्या चला था, ये जो ये है, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है टू इक्वल रूट्स, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे p स्क्वायर के बदले में डाल दूंगा 4q. सो 2b माइनस 2q इज इक्वल टू ap माइनस 4q. ये उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2b माइनस 2q प्लस 4q इक्वल्स ap. क्या बन गया? 2b प्लस 2q इज इक्वल टू ap. सो ट्वाइस ऑफ b प्लस q इक्वल्स ap. आई थिंक यही प्रूफ करना था. यस, यही प्रूफ करना था. आई एम श्योर ये सवाल आपको शुरू में मुश्किल लगा होगा, लेकिन जैसे ही आप इस पूरी कहानी को देखेंगे आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, जैसे ही आपने ये दो कंडीशन पे ध्यान दे देंगे. आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 में गौर से देखिए क्या लिखा है. इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये तीनों रियल नंबर है, ए बी सी तीनों रियल नंबर हैं, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल 0 हैव अ रूट इन कॉमन, शो दैट दिस इज इन द रेशियो 1:2:9. आप गौर से देख रहे होंगे ये और ये इसके कोफिशिएंट का सेम प्रोपोर्शन कैसे आ रहा है. आप गौर से इस इक्वेशन को देखो, इसके डिस्क्रिमिनेंट बताओ क्या होगा. इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1, दैट इज 4 माइनस 36. क्या हो गया? तो क्या हो गया? 4 माइनस 36 क्या हो गया? माइनस 32. क्या बन गया? माइनस 32. इसकी वजह से क्या पता चला? इसका पता चला डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव. तो मतलब क्या हुआ? इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे.
आपको जैसा कि पता है कि कोफिशिएंट रियल है, तो अगर एक रूट p प्लस आयोटा q है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा q होगा, राइट। सेम वे अगर वन ऑफ द रूट इसमें भी कॉमन है तो इसका मतलब जो उसका दूसरा रूट होगा वो भी क्या होगा, p माइनस आयोटा q। तो इसका मतलब है, ये रूल समझिए, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहा जा रहा है कि इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही कॉमन रूट है, अगर ये कहा जाता है, और उसमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिखता है, तो इससे साफ क्लियर हो जाता है कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट्स कॉन्जुगेट होंगे। अगर एक रूट उससे मैच कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरा रूट भी उसका भी कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल है। तो एक्चुअली में ये कंडीशन हो जाएगा कि सिर्फ एक रूट कॉमन नहीं है, बोथ रूट्स कॉमन है। आप समझ रहे हो, जैसे अगर आप कह रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 का एक रूट है p प्लस आयोटा q और दूसरा रूट डेफिनेटली p माइनस आयोटा q होगा क्योंकि सारे कोफिशिएंट है, और इसका रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए ये कॉमन रूट है तो ये इसका रूट अगर p प्लस आयोटा q है, तो बताओ इस इक्वेशन में दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस आयोटा q होगा। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोथ रूट्स कॉमन है। बोथ रूट्स कॉमन का मतलब क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप कह सकते हो a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन 9। तो आपको ये पता चल चुका है a बाई 1 इज इक्वल टू b बाई 2 इज इक्वल टू c बाई 9। ये मान लीजिए k के बराबर है, तो आप कह सकते हो a इज k, b इज 2k, c इज 9k। तो आप क्या कह सकते हो, a इज टू b इज टू c क्या कह सकते हो, k इज टू 2k is to 9k which will be 1 is to 2 is to 9। तो ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन जैसा था, आपको इसमें ध्यान देना होगा कि जब दो रूट कॉमन है तो मैं एटलीस्ट ये तो बोल सकता हूँ एक रूट कॉमन है, राइट। एक रूट कॉमन है और आपको साफ दिख रहा है कि एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डेफिनेटली दूसरा जो रूट होगा वो कॉन्जुगेट होगा, और अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स मैच कर रहा है तो डेफिनेटली उसके भी सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं, तो उसका भी कॉन्जुगेट होगा, तो मतलब दोनों रूट्स इसके सेम हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज कोइंसिडेंट देन यू हैव टू फाइंड ए प्लस बी। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इसमें जैसे ऑलरेडी कोइंसिडेंट है मतलब क्या है, वन रूट कॉमन है, तो आप सिंपल सी बात है, आप फिर से वही फॉर्मूला लगा दोगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए। इससे साफ, इसको अगर आप गौर से देखोगे तो साफ इससे आपको पता चल रहा होगा अल्फा इज एक्चुअली इक्वल टू 1। इससे पता चलता है अल्फा इज इक्वल टू 1। सो अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बी माइनस ए। अगर मैं अल्फा को 1 डाल दूं तो 1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू बी माइनस ए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ए प्लस बी इज बी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, लेट्स गो टू द 30th प्रॉब्लम। If two roots of the equation x minus 1 into 2x square minus 3x plus 4 equals 0 and coincide with roots of the equation x cube plus a plus 1x square plus a plus b into x plus b equals 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, और दोनों क्यूबिक इक्वेशन में आपको जो दिख रहा है वो ये कि दो रूट्स कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। आपको ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो पहले जो पहला क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है पहले उसको ध्यान दो। दे रखा है x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इसको फैक्टर करने की कोशिश करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो क्या है, 9 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 2 विच इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, इसके जो तीन रूट्स हैं वो हैं 1 एंड 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। उसको आप कह लो 1 p प्लस आई क्यू कह लो एंड p माइनस आई क्यू कह लो फॉर अ टाइम में, राइट। वो निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्यूबिक इक्वेशन क्या रखा है, एक्स क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स 0। अब देखिए इसको फैक्टराइज करने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि कहानी क्या है। अब इसमें देख सकते हो एक्स क्यूब प्लस
एक्स स्क्वायर बाहर निकल के आ गया, यहाँ पे आ गया ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स आ गया, यहाँ पे बी एक्स प्लस बी। अब देखिए कमाल क्या हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक्स प्लस वन, यहाँ पे ए कॉमन, ए एक्स कॉमन लीजिए, क्या बन गया एक्स प्लस वन, यहाँ पे बी कॉमन लीजिए, क्या बना एक्स प्लस वन। तो आप देख सकते हैं एक्स प्लस वन कॉमन है, तो अंदर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। आपका ये इक्वेशन 2 है, और इक्वेशन 1 है एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज योर इक्वेशन 1। तो डेफिनेटली इस, अगर आप देखोगे तो इसके रूट्स कौन कौन थे, इसके रूट्स थे 1 और p प्लस आई क्यू और p माइनस आई क्यू। और इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स है माइनस वन, और लेट से उसका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट्स कॉल इट एज r प्लस आयोटा s एंड r माइनस आयोटा s। अगर मैं कहूं इन दोनों इक्वेशन में कॉमन है तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर ही अब कॉमन हो सकता है, और कुछ कॉमन हो नहीं सकता, क्योंकि रियल रूट साफ दिख रहा है कि दोनों दे आर नॉट इक्वल। तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि इस दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट सेम होंगे, वो भले ही कॉम्प्लेक्स रूट्स हों लेकिन दोनों रूट्स सेम होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू बी अपॉन फोर। मुझे क्या निकालना था, मुझे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी निकालना था। यहां से मैं कह सकता हूं ए इज माइनस थ्री बाई टू एंड बी इज टू। सो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस थ्री बाई टू दैट इज हाफ, और ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, राइट। सो दिस इज द थिंग ऑफ, right? So now the next thing which we are going to cover is, I hope आपको ये समझ में आया है, right? क्यूबिक इक्वेशन था, उसमें पहला जो क्यूबिक इक्वेशन था उसमें एक रियल रूट थे, दो कॉम्प्लेक्स रूट थे। दूसरा जो क्यूबिक इक्वेशन था उसमें भी एक रूट्स रियल थे। तो डेफिनेटली अगर मैं कह रहा हूं दो रूट्स कॉमन है तो वो दोनों रूट्स कौन से होने चाहिए, क्योंकि दोनों जो रियल रूट्स दोनों डिस्टिंक्ट निकले हैं वो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इक्वेशन 1 का जो रियल रूट निकला है वो निकला है 1, और इक्वेशन 2 का जो रियल रूट निकला है वो -1। तो डेफिनेटली 1 और -1 सेम नहीं है, तो जो दो रूट सेम है वो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स रूट्स वाले हैं। तो इसका मतलब वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स सेम है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो सेम होगा। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तीसरी चीज जो हमें आज कवर करनी है वो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक एंड देन विल फिनिश क्वाड्रेटिक ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। हेलो बच्चों, अभी हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, आपकी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी और कंडीशन फॉर कॉमन रूट एंड कॉमन रूट्स बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है IIT जेईई मेंस और एडवांस के नज़रिए से, और इनके सवाल करने बहुत ज़रूरी होते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा ये सारे सवाल अगर बिना कॉन्टेक्स्ट के आपके सामने आ जाएंगे तो इसको सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी, सोचने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस, इन दोनों टॉपिक पे हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसको मास्टर कीजिए। उसके अलावा हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कराएंगे आपका, ताकि आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाए। ग्राफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्राफ शुरू करेंगे। ग्राफ में कुछ चीज़ें आपको याद होगी जो आपने ऑलरेडी क्लास 10th में किया है और बेसिक मैथ्स में हमने ऑलरेडी किया था। अगर आपको याद हो, हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सीख रखा है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, आई एम श्योर आपको पता है, पैराबोलिक होता है। आपने ऑलरेडी इसको कर रखा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा देखने में होता है। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के आगे अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया जाए तो ये भी आप बता सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा दिखेगा। डेफिनेटली वो ग्राफ डाउनवर्ड दिखेगा, आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखें। क्लास 10th में आपने क्या किया था वो देखें। नेक्स्ट क्लास हम जल्दी से ग्राफ को कवर करेंगे, उसके बाद हम रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन ये सब की बातें करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे ग्राफ से। सो लेट्स कॉल इट अ डे फॉर टुडे। और एक और बात मुझे आपसे करनी थी रिगार्डिंग योर मैनेजमेंट ऑफ टाइम। हम ऑलरेडी क्या कहते हैं बच्चों से मांग रखे हैं कि आप अपने शेड्यूल ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, सो दैट हम आपके शेड्यूल को देखते हुए आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करें कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल सेट है। आपकी सक्सेस आपके टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आप टाइम मैनेज अच्छे से कर पा रहे हो तो आपकी सक्सेस निश्चित ऐसे सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर आप टाइम
मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम लोग एक डिटेल्ड सेशन लेंगे जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि कैसे अपने स्टडी हैबिट को एफिशिएंट बनाना है, कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, स्कूल को और इन्फिनिटी को कैसे बैलेंस आउट करना है, एट द सेम टाइम हमारे लिए जो इंटरटेनमेंट टाइम है उसको कितना अच्छे से फुलफिल करना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के करियर के लिए। तो ये सारी बातें हम करेंगे। तो जो बच्चे अभी तक टाइम टेबल अपना नहीं भेजे हैं, प्लीज़ अपना टाइम टेबल जल्द से जल्द मुझे भेज दें, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं प्रोबेबली आपका इस पे सेशन लूंगा जिसमें विल बी टॉकिंग अबाउट द डिटेल्ड एनालिसिस। मैं आपको 3-4 ऑल्टरनेटिव्स दूंगा, क्योंकि हर आदमी के लिए एक टाइम टेबल सूट नहीं करता। बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइम टेबल के हिसाब डिफरेंट टाइम में एक्टिवेट होते हैं। तो इसलिए मैं सारे आपके पूरे पैटर्न को देखने के लिए, इसलिए मैं पूरा साइंटिफिक और मैथमेटिकल टाइम टेबल बनाना चाह रहा हूँ, सो दैट आपकी जो पूरी क्लास है उसकी एटलीस्ट 2 से 3 स्टैंडर्ड मॉडल में बना सकूं। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपनी टाइम टेबल नहीं शेयर की है, प्लीज़ मेरे को पर्सनल विंडो पे या मेरी ईमेल आईडी पे अपनी टाइम टेबल जल्द से जल्द शेयर करें। ओके बच्चों, सो लेट्स मीट विथ न्यू एनर्जी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।